زولوجیکل گارڈن جس کو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ اسکولز اور ہمارا اپنا اسکول پلان کیا کرتا تھا وزٹ کے لیے بچوں کے، اور یہاں ہمیں لے کے جایا کرتا تھا، اور ہم خوش ہوتے تھے اس باغ کو دیکھ کے۔ آج اسی باغ میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جائے، اس کو کس طرح لوگوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں لوگ آ کے، بچے آ کے انجوائے کر سکیں۔ کراچی میں اس قسم کی جگہیں بہت کم رہ گئی ہیں، اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے، سندھ گورنمنٹ بھی فنڈز دے رہی ہے، کام ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں جوائن ہینڈز جو انٹرنیشنل ایک کنسرن ہے، ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں گے ہم، اور آج ہم ایک ایم او یو دیں گے فار دا کیپیسٹی بلڈنگ ورکنگ ان دا زو، اور جانوروں کے حوالے سے بھی، اور بوٹینیکل جو یہاں پرانے 2 پرانے، آج اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ بارش ہوئی ہے تو سارے پتے ہرے نظر آ رہے ہیں، مٹی ڈسٹ جو ہے وہ اتر چکی ہے بارش کی وجہ سے، اور آپ کو کراچی میں یہ جو تتلیاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ ہمارے یہاں پولوشن اتنا ہے باہر کہ یہ سروائیو نہیں کر سکتے، تو یہ سروائیو بھی ان درختوں کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ تو ہمیں ماحول چینج کرنا ہوگا اس شہر کا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس شہر کا ادھر سے آلودگی ختم کی جائے، انوائرمنٹ بہتر کی جائے۔ ہم جوائنٹ ہینڈز کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے یہ کوشش کی، اور ہمارے ساتھ کے ایم سی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں آج، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو سٹاف ہے یہاں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا، اور اس زو کو مثالی بنانے کی کوشش کریں گے ہم۔ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہمارے 2 زو اور ہیں، لانڈی اور کورنگی، اس میں کامیابی کے بعد انشاءاللہ میں جوائنٹ ہینڈ سے زبیر بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ہم تعلقات کو آگے بڑھائیں کراچی کے لیے، اور ان دونوں زو کو، سفاری پارک ہے اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے۔ دیکھیں، جب تک سب مل کے کام نہیں کریں گے یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ دنیا میں اسی طرح چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اپنی ہیریٹیج کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر افسوس کہ یہاں ہماری حکومت مڑ کے دیکھتی بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں ہیں ہماری ہمیں خود کرنا ہوگا۔ کے ایم سی کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز کر سکیں۔ میرے پاس کراچی میں بہت سارے ایسے پارکس ابنڈنٹ پڑے ہیں، اجڑے ہوئے پارکس پڑے ہیں جن پہ میں پیسے خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ پیسے نہیں ہیں۔ جو فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں وہ پورے ملتے بھی نہیں ہیں، جو ملتے ہیں ہم نے بڑی مشکل سے کچھ پارکس بنائے ہیں جو کراچی والے دیکھ بھی رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، جس میں پولو گراؤنڈ کا پارک ہے، جھیل پارک ہے، ہل پارک پہ کام ہو رہا ہے، کڈنی ہل پہ اب ہم کام کرنے جا رہے ہیں، باغ ابن قاسم آپ نے دیکھا، یہ زو دیکھ لیں، یہ پہلے سے بہتر ہوا ہے۔ چائنا گراؤنڈ وہ جو کشمیر روڈ پہ ہے اس کو ہم پارک میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ تو جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں ان محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں۔ میں آپ کے میڈیا کے توسط سے لوگوں سے کہوں گا، کراچی کے لوگوں سے کہوں گا، مخیر حضرات سے کہوں گا کہ کم فارورڈ، جیسے یہ ہیلپنگ ہینڈ ہے اسی طرح کراچی میں بھی کوئی ہیلپنگ ہینڈ نکلے فور کے ایم سی۔ ہمارے بہت سارے ایریاز ایسے پڑے ہیں اجاڑ، جس کو یہاں کے مخیر حضرات لے سکتے ہیں، اس پہ کام کر سکتے ہیں، تو آگے آئیں اپنے شہر کو بنانے کے لیے۔ میں جوائنٹ ہینڈز کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے انیشیٹو لیا، اور کراچی کے لیے، کراچی کے لوگوں کے بھلائی کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بطور میئر کراچی
मैं तो चाह रहा था, समझ रहा था शायद पाक से ही रिलेटेड कोई सवाल आएगा कि एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, कम से कम केएमसी के कोई अच्छे स्टेप की तारीफ भी करें। कुछ आपके मीडिया चैनल्स तो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं कोने खुदरों में घुस घुस के कि क्या 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 गलत काम कर रही है केएमसी। अच्छे काम को भी तो दिखाएं। गलत काम तो यूं हो रहे हैं कि हमारे वसाइल नहीं है, जो अच्छे काम है उनको भी अवाम तक लेके जाएं। जहां तक आपका सवाल है 149(4) आजकल इसी का चर्चा चल रहा है। देखें, ये आइन में आर्टिकल मौजूद है और जाहिर आइन में जब आर्टिकल मौजूद है तो उसकी वजह है। 18 अमेंडमेंट के बाद अगर सारे इख्तियारात जब नीचे चले गए सूबे को, तो उस वक्त जब 18 अमेंडमेंट हो रही थी तो उस वक्त इस शिक को खत्म किया जा सकता था 149(4) को, जो कि इजाजत देता है कि आप सूबे सिंध को दो मैटर्स पे, लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंसेस, अगर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जनरेशन ऑफ फंड्स या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है, जो कि फरोग नसीम ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है मीडिया में कि वो अपनी जो एडवाइस है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट तक पहुंचाएंगे। नाउ इट्स अप टू देम टू इम्प्लीमेंट और नॉट। तो ये एक पहला स्टेप है। हालात आप देख रहे हो कि इस शहर के और पूरे सूबे के क्या हैं, किस तरह से फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। साफ पीने का पानी आज 10-11 साल हो गए हैं, घर में कंटमिनेशन है लोगों के। गटर का कंटमिनेशन तो पानी में होती है, उसको छोड़ें, गटर का पानी घरों में है अंदर। सीवरेज कोलैप्स कर चुका है, ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, रोज हादसा हो रहे हैं, कूड़े का ढेर है पूरा शहर। तो ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड क्या कर रहा है? ये अरबों रुपया जो एलोकेट हुआ है बजट में वो कहां गया? कराची के लोग अब सवाल कर रहे हैं कि 300 अरब से ज्यादा टैक्स की मद में जो ये शहर दे रहा है इस सूबे को और इस मुल्क को, वो जा कहां रहा है? वापस क्यों नहीं शहरियों को मिलता? ये शहरी सफर कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में कि आप डिवॉल्व भी कर रहे हो चीजों को 18 अमेंडमेंट के थ्रू, उसका मतलब ये नहीं होता कि स्टेट विद इन स्टेट बना दिया जाए। जब फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी तो लोग खड़े होंगे। मैं आपके यहां स्टेज के तवज्जुह से कराची के बिजनेस कम्युनिटी को ये कहूंगा कि केएमसी, एमक्यूएम या मेयर के फेवर में मत खड़े हों, कराची के इश्यूज के ऊपर आवाज उठाएं। मैं सियासत से बालातर होकर बात कर रहा हूं। लोग सफर कर रहे हैं, हर जबान बोलने वाला रहता है इस शहर में, हर मजहब रखने वाला इस शहर में रहता है, जो सफर कर रहा है माजी की गलतियों से। उसमें हमारी भी गलतियां हैं, मगर अब इनफ इज इनफ, आगे बेहतरी के लिए जाना है। और अगर सिंध गवर्नमेंट को 3 साल से मैं ये बात कह रहा हूं और कोई सुनवाई नहीं है, तो जाहिर है आप अपना ऑप्शन एग्जॉस्ट करोगे आर्टिकल 149(4) का, और उसके बाद भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं 140A, उसका इंप्लीमेंटेशन जो कि कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ा है। तो ये ऑप्शंस हैं जो कि अगर सिंध गवर्नमेंट इस पे डायरेक्शन ले लेती है, अगर कैबिनेट या पीएम खत लिखते हैं सिंध गवर्नमेंट पे और वो डायरेक्शन एक्सेप्ट कर लेती है और उसको इंप्लीमेंट करती है, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और अगर नहीं करती तो जाहिर है उसके बाद भी ऑप्शंस हैं। साहब, आप वजीर आजम को दावत दे रहे थे कराची के मसले पे, जब आपकी एक क़यादत जो है फर्रुख नसीम की सूरत में जो है वो कराची आई, कल आपने एतराज किया कि इनके इक़दामात से आने वाले मेयर को फायदा होगा, इस मेयर को नहीं होगा। मुझे अपना फायदा या किसी मेयर का फायदा नहीं चाहिए, मुझे कराची का फायदा चाहिए। कराची के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो। मेरा कहने का मतलब ये था कि जल्द से जल्द, 6 माह हो गए पीएम की मीटिंग की, पीएम साहब ने खुद मुझे कहा था 25 अरब इस शहर के लिए ग्रांट दी जाएगी शॉर्ट टर्म, जो कि जल्द से जल्द ये जो सीवरेज और दूसरे इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाएं। 5 अरब हैदराबाद के लिए, जो आज तक नहीं आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको शॉर्ट टर्म जो चीजें होती हैं उसको फौरी किया जाता है। आज आईसीयू में है कराची, अगर आज आप कोई ऑर्डर करेंगे तो उसको इंप्लीमेंट होते होते 6 महीने साल लगते हैं। हमारे यहाँ प्रोसीजर इतना बड़ा है। तो फायदे का
अपने फायदे या किसी मेयर के फायदे का शौक नहीं है। यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं, जल्द से जल्द इनको रिलीफ मिल जाए। तो आज अगर सिलसिला शुरू करेंगे तो हो सकता है 6 महीने बाद चीजें इंप्लीमेंट हो रही हो ग्राउंड पे और लोगों को रिलीफ मिल रहा हो। ये मकसद था मेरा बात करने का। देखिए, जो भी आईनी एग्जाम होगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी। ये कराची है, पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ, 2 पोर्ट्स हैं शहर में, और दुनिया में ये शहर पहचाना जाता है। इसी शहर के साथ अगर इसको निगलेक्ट किया जाएगा तो ये अच्छा मैसेज नहीं देता पूरे मुल्क में भी। पूरे मुल्क से लोग इधर आते हैं फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स के लिए, तो आप उसी को खराब कर रहे हो, उसी को तबाह कर रहे हो। तो जो भी ऑप्शन फेडरल गवर्नमेंट लेगी आइन के दायरे में रहते हुए, मेरी सपोर्ट कराची के इश्यूज पे उनके साथ रहेगी। देखिए, आप गवाह हो, ये कैमरे गवाह हैं कि डे 1 से, जिस दिन से मैं जेल से रिलीज होके मेयर बना हूं, उस दिन से मैं हैमरिंग कर रहा हूं कराची के इश्यूज पे, कराची के ड्यू शेयर पे। हमें इस शहर को ड्यू जो शेयर बनता है इसका वो नहीं मिलता, नहीं दिया जा रहा, चाहे मैं मेयर हूं या कोई भी मेयर हो। ये सबसे खराब निजाम इस शहर को दिया गया है, बल्दियाती, सबसे खराब। 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, 6 कैंटोनमेंट्स हैं, 1 DHA है, फेडरल ओन लैंड एजेंसीज मौजूद हैं यहाँ, 3 अथॉरिटीज बना दी गई। इतना डिवाइड कर दिया गया है शहर को कि यहाँ कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो ये आवाज बुलंद कर करके आज 3 साल में यहां तक मामलात पहुंच रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट्स जो हैं वो सो मोटो लेंगे इस पे, मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारी 140A की जो पिटीशन है उसको टेक अप करेंगे और उस पर कोई फैसला करेंगे बेहतरी के लिए, जो कि पूरे मुल्क के बल्दियाती निजाम में बेहतरी ला सकेगा। मेरा टारगेट ही ये है कि ये जो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है, असल हुकूमत ही ये होती है, असल जमहूरियत ही यहां होती है। अगर ये हुकूमत मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा, मुल्क की इकोनॉमी मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी। आई एग्री विद यू। देखें, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हम 3 साल से इस बात को 2017 में मैं सुप्रीम कोर्ट गया था और वाटर कमीशन का डिसीजन मौजूद है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को डिसॉल्व करें और हैंड ओवर टू KMC अलॉन्ग विद द फंड्स। वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। 5 ऑर्डर्स हो चुके हैं कि जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल पे जो टैंकर्स को जाना है वो जाएं वहां। सिंध गवर्नमेंट वो ऑर्डर्स 5 दफा ऑर्डर्स देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इंप्लीमेंट नहीं कर रही। जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल तैयार पड़ा है। तो ये वो सारा केस तैयार हो रहा है कि जहां जहां आप वायलेशन कर रहे हो विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, तो देखने वाले साहिब इक्तदार, सोचने वाले बैठे हैं, देख रहे हैं। बैड गवर्नेंस की मिसाल नहीं मिलती सिंध गवर्नमेंट की, इससे ज्यादा बैड गवर्नेंस हो नहीं सकती। पूरे सिंध की बात कर रहा हूं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज रिकॉर्ड पे रिमार्क्स दें कि सबसे करप्ट तरीन सूबा है ये। कराची के लिए बजट में 1 रुपया खर्च नहीं किया जाता। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जब इतना मजबूत केस तैयार होगा तो कुछ भी हो सकता है फिर। तो उसके लिए, कराची शहर की बेहतरी के लिए मैं तो कहूंगा कि
कल की जगह आज नोटिस लिया जाए, क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं इस शहर के भी और इस सूबे के भी। ये सवाल तो उन्हीं से करना चाहिए था आपको, मुझे कहाँ इस कंट्रोवर्सी में डाल रहे हो आप। मेरे पास पहले ही बहुत सारे इश्यूज हैं। ये उनका अपना पॉलिसी का मामला है। उन्होंने जो पॉलिसी पीटीआई ने बनाई हुई है कि अगर कोई सही डिलीवर नहीं कर रहा तो उसको चेंज किया जाएगा। अब ये मुझे नहीं पता कि वो ये पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर को भी अफेक्ट करेगी या नहीं, ये तो उनसे ही सवाल करें। ये रोज सियासी लीडरान और खास तौर पे नए नए जो सियासी लीडर बने हैं, अभी शौक हुआ है जिनको, बाहर से आए हैं, तो ये स्टेटमेंट्स के बगैर रह नहीं सकते। इनको मीडिया में जगह चाहिए होती है फॉर द चीप पब्लिसिटी। तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट विदाउट वर्किंग ऑन इट ये फेंक देते हैं मीडिया में कि 50 करोड़ इसको दे दिए, 2 अरब इसको मिल गए, 15 अरब मेयर को दे दिए, और ये कह के निकल जाते हैं। कागज देखें, कोई चीज सीक्रेट नहीं होती। जो सिंध गवर्नमेंट ने दिया है केएमसी को, वो रिकॉर्ड पे है सिंध गवर्नमेंट के पास। बजट से पैसे निकाल लें, बजट बुक निकाल लें, क्या क्या एलोकेट हुआ है, और मेरे ऑफिस में आ जाएं, मैं बता दूंगा आपको कि सिंध गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया और हमने फिर वो कहां खर्च किया और कैसे खर्च किया। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ऑडिट होता है, एजी सिंध से पैसे रिलीज होते हैं, सारी कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं। ये सिर्फ मैंने जैसे कहा, ये छोटे छोटे जो नए नए आ गए हैं, ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए इन द मीडिया ये इस किस्म के स्टेटमेंट देते रहते हैं। उससे घबराएं नहीं आप। मेरे ख्याल में बस कर दें, इतना अच्छा काम लेके आए हम लोग। सुप्रीम कोर्ट की बात की, आप खुद अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। चिड़ियाघर में 300 से ज्यादा जो है गैर कानूनी जो है मकानात हैं और कमर्शियल इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री कायम है, तो आप उसको तो खत्म नहीं कर रहे हैं और आप उम्मीद रख रहे हैं सिंध हुकूमत जो है वो अमल करे। देखिए, मैं तो जितने भी ऑर्डर्स कोर्ट्स के आ रहे हैं, मैं बिल्कुल 100% कोशिश कर रहा हूं इंप्लीमेंट करूं। जहां लैक करता हूं वहां मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। जब मुझे कहा गया था कि इंक्रोचमेंट रिमूव करो, तो मैंने कोर्ट में ही कहा था कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है मशीनरी, नहीं है रिसोर्सेज। तो उन्होंने अलाउ किया, फंड्स भी दिए, तो जाके इंप्लीमेंट हुआ। तो जो आप जहां इशारा कर रहे हो, इंशाल्लाह हम उनको भी रिमूव करेंगे, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसको इंप्लीमेंट होना है। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वरना किडनी हिल फिर इंक्रोचमेंट खत्म की, दिल करता है कल वो बन जाए लोगों के लिए, इतनी अच्छी जगह है। मगर जाहिर है हमारे पास फंड्स नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको जैसे भी बेहतर कर सकें, तो करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, ये वही है कि अखबारों में, मीडिया इतना माशाल्लाह आगे चला गया है कि वो चिड़िया उनकी अंदर से भी खबर ले आती है। तो अब जो भी होगा सामने आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। जी, मैं इसका जवाब यूं दूंगा कि समा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जर्नलिज्म करे, सहाफत करे, सियासत ना करे। सहाफत करे, सहाफी रखें अपने मीडिया हाउसेज में, सियासी वर्कर ना रखें, सहाफी रखें अपने मीडिया हाउसेज में। और ये केएमसी का काम है, चाहे वो वार्डन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेरे अस्पताल हो, चाहे वो कोई भी मेरे 35 महकमे हो, उसकी जिम्मेदारी केएमसी की है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं विद अवेलेबल रिसोर्सेज बेहतर करें। वार्डन्स को कहां पोस्ट करना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। वो जहां बेहतर समझेगा वहां करेगा। हु इज समा टू गाइड मी? और फिर वो भी एक सियासी वर्कर? नो, सहाफी लेके आए अपने मीडिया हाउसेज में। जर्नलिज्म को मजबूत करें प्लीज।